Good morning, all of you. And now this is Brijesh Singh, and I'm going to discuss with you Income Tax Law and Practices Unit 4. The topic is set off or carry forward losses. So basically, after discussion of clubbing of incomes, the second thing is set off and carry forward losses is the important topic in that particular session. So all these things I will discuss with you. This is a lesson outlines, set off and carry forward losses. First of all, we understand the set off and carry forward losses, what are they and how they are reacted, and set off the losses from one source against the income from another source under the same head of income. Section 70 में ये आता है कि set of losses from one sources against the income अगर है तो क्या है, तो other heads क्या है. Then set of losses from one head अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हेड. सेक्शन 71 है, अगर एक हेड से दूसरे हेड में इसको जा रहा था उस सेट ऑफ लॉसेस को कैसे हम करेंगे. देन फोर्थ वन इज कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, क्या है जिनको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है. देन फिफ्थ इज ट्रीटमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ सर्टेन एसेट्स. देन सिक्स इज सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ लॉसेस. रिटर्न ऑफ लॉसेस सेक्शन 80 एंड फ्रॉम अनदर हेड सेक्शन 71 अगर हम बात करें तो ये इसमें आता है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर सेशन. तो जो हमने पहला सेशन पढ़ा था कि जिसमें हम क्लबिंग ऑफ प्रोविजन इनकम की बात कर रहे थे, तो जिसमें प्रोविजंस फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आर डिस्कस. तो इसमें हम पार्टिकुलरली जो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की बात करेंगे, क्या प्रोविजंस है, कैसे इनको किया जा सकता है. समटाइम्स एसएससी incurs a loss from the source of income and unless such loss is set off against any income. फिर कोई इनकम जो है लॉस हो जाता है, फिर सच लॉस उस लॉस को हम सेट ऑफ अगेंस्ट कर देते हैं इनकम के. द नेट रिजल्ट ऑफ द एसएससी's activity during the particular accounting years cannot be ascertained and consequently the tax payable would also be incapable of the determination. For this purpose, the Income Act contains the specific provision section 70 to 70, 80 and the set off and carry forward losses. So you would be able to understand the following things. Then what is the provisions of set off carry forward, set off or carry forward again losses of against and how can losses be set off interheaded and intraheaded, and condition to be satisfied for carry forward losses and set off of losses. तो फर्स्ट थिंग आई डिस्कस विद यू द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. क्या होता क्या है बेसिकली, द व्हाइल एन इंडिविजुअल्स टू derive the incomes and the possibility of incurring losses could not be ruled out. Based on the principles of natural justice, a set off should be available for loss incurred. तो बेसिकली जो सेटअप है वो लॉस इनकर्ड जो भी हुए उन पे आपको मिलता है. The income tax in India recognize this. The provides for the judgment and the utilization of the losses. ठीक है, यहाँ पे जजमेंट दिए हुए हैं बहुत सारे for the purpose. Income Tax Act 1961 contain the specific provision section 70 to 80 for the set off the and the carry forward losses के लिए specifically sections दिए गए हैं. So income tax is levied on the total income of the provision years and the LSSC, and it is necessary to ascertain the total income. Further incurred by the SSC is to be set off against any income. The net result of SSC activities during the particular accounting year cannot be ascertained, and consequently the tax payable would also be incapable of determination. ठीक है, तो वहाँ पर हम determination की बात कर सकते हैं. Second thing आपको समझना है कि set off losses from one source against income from another source under the same head of income. ठीक है, section 70. तो सेट ऑफ लॉसेस है फ्रॉम वन सोर्स, एक सोर्स है, देन अनदर सोर्स ऑफ द सेम हेड ऑफ इनकम. तो प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स एंड अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट. ठीक है, इसको इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कहेंगे जब हम सोर्स अंडर द पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ठीक है, एक ही हेड है और दूसरे हेड से अगर बात करें अदर सोर्स की बात करते हैं, इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट. एंड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस फ्रॉम द बिजनेस अगेंस्ट फ्रॉम बी, बिजनेस बी. ठीक है, बिजनेस ए में अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको बिजनेस बी से अगर हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसको इंट्रा हेड
एडजस्टमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पर्सन है, इनकम फ्रॉम ऑफ ए पर्सन इज कंप्यूटेड अंडर द 5 हेड्स सोर्सेज, जिसको हम सोर्सेज कहते हैं, ऑफ इनकम derived by any individual में but yet they could be classified under the same head। ठीक है, तो बेसिकली जो कंसिडरेशन है, कंसिडर इज अ सिचुएशन वेयर हरीश हैज 2 प्रॉपर्टीज, जैसे इसको हम समझ सकते हैं। मिस्टर हरीश है एक, जो उनके 2 प्रॉपर्टीज हैं, वंस ऑक्युपाइड बाय हिम एंड द अदर इज लेट आउट। एक है उनके पास रहती है, एक को उन्होंने लेट आउट किया हुआ है। हरीश pays इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1,50,000 ऑन द प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड एंड derive नेट रेंटल नेट इनकम ऑफ 1,50,000। एक प्रॉपर्टी को उन्होंने रेंट पे दिया, एक प्रॉपर्टी को जो है वो उससे 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी का लोन जो है वो 1,50,000 का इंटरेस्ट पे कर देते हैं। तो फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इनकम इज कंप्यूटेड एज निल। तो वहां पर प्रॉपर्टी पे निल है पहली, जिसपे वो खुद रहते हैं, एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर रिजल्ट इज लॉस। ठीक है, जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर्स है रिजल्ट इन लॉसेस जो है, द लॉस ऑफ ₹1,50,000 कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इंटेंट इनकम। जो इनकम आपको रेंट से मिल रही है वो वहां पे इंटरेस्ट उसको कवर कर लेता है। तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विल बी नील, तो उसका इसमें जो है आपके प्रॉपर्टी पे नील हो जाएगा। इन जनरल इफ द नेट रिजल्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर इज रेस्पेक्टिव of the any source falling under any head of income is loss, the assessee is entitled to set off the amount of such loss against his income from any other source under the same head। जनरल एक्सपेक्टेशंस के अगर एक्सेप्शंस हैं टू द जनरल रूल्स, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉसेस हैं, तो लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट। ठीक है, जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है अगर उसमें कोई लॉस हो रहा है तो उसको क्या आप प्रॉफिट से स्पेकुलेट नहीं कर सकते। अगर लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के जो लॉसेस हैं उनको आप स्पेकुलेटिव इनकम से जो है लॉसेस को जो है ले सकते हैं, उनको जो है बिजनेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेकुलेटिव से स्पेकुलेटिव में जाएगा तो नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस है तो कई बार एलटीसीएल जो हो जाती हैं आपकी ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एसेट। हाउएवर एसटीसीएल कैन बी सेट ऑफ एसटीसीई। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो कैपिटल एसेट्स हैं लॉसेस हैं उनको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस में सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तो शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते। कैजुअल इनकम की बात करें, नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में कोई भी जो आपकी इनकम उनके लॉसेस को कभी भी आप इसमें नहीं कर सकते, चाहे वो इनकम फ्रॉम लॉटरी हो, क्रॉसवर्ड हो, या रेसिंग हॉर्स रेसिंग वगैरह हो। इनकम लॉसेस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वगैरह की बात करें, लॉस फ्रॉम business of owning and maintaining a resource cannot be set off against the income from the business। जो बिजनेस आप करते हैं, अगर हॉर्स रेसिंग की बिजनेस में आपने पैसे लगाया वो वहां पर लॉस हो गया तो आपको अपने बिजनेस से या अन्य बिजनेस से उसको मेंटेन नहीं कर सकते। लॉस फ्रॉम एन exempted source cannot be set off against the taxable income। exempted जो सोर्स है उससे आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। if any income from the particular source is exempted from tax, then less loss from the such sources can not be set off against any other incomes which is chargeable to tax। So agricultural income is exempted from tax, and if the taxpayer incurred loss from agricultural activity, then such cannot be adjusted। Income losses of specified business, loss from the business and specified under the section 35 AD cannot be set off, ठीक है, of any other business except the income from specified business section 35 AD and applicable is there। Third thing is set off losses from one head against income from another head। ठीक है, एक हेड से दूसरे सेक्शन 71 में जाता है। After making inter-head adjustment, if any, the next step to make inter-head adjustment। ठीक है, पहले हमारा था set off losses from one head to another head, तो यहाँ पर है set off losses from one head against income from another head। तो यहाँ हम देखेंगे if incurred having income under the head and the other head of income, then he can be adjust the loss from one head against the income from other head। Loss under the head of house property to be adjusted against salary income। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। जैसे कि देन अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से लॉसेस हैं तो आप सैलरी इनकम को एडजस्ट
करा। तो पर्सन में है वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम कंप्यूटेड अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ द इनकम। लॉस अंडर वन हेड इनकम इज जनरली अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर द अनदर हेड। जो भी कोई लॉस होता है उसको दूसरे हेड से हम उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एक्स हैज वन प्रॉपर्टी, ओनली वन प्रॉपर्टी विच इज ऑक्यूपाइड बाय हिम एंड लॉस इज 1,50,000। एक प्रॉपर्टी है, उसने उसको लॉस हुआ, ही डिराइव्ड रुपीज 10 लाख from salary during the year, and he can be set off the losses of 1,50,000 and the salary income by making appropriate declaration to the his employer। अगर वो एम्प्लॉयर को अपना डिक्लेरेशन दे देता है तो नेट टैक्सेबल इनकम वाली 8,50,000 हो जाएगी उसकी। तो जो भी लॉसेस है हाउस प्रॉपर्टी के वो भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन की बात करें सेक्शन 71 की, तो इनको हम कह सकते हैं नेसेसरी नॉट हैविंग एनी इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन and having loss from income under the head of and can set off such losses in his income under any other। तो कैपिटल गेन से उसको अलग दूसरे हेड से वो कर सकते हैं। लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर इनकम इंक्लूडिंग द कैपिटल गेन्स। दोनों में से कर सकता है। लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी अदर हेड, इट मस्ट बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, जो लॉसेस अगर कई बार कैपिटल गेन्स में हो रहे हैं, वो लॉस जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगी वहां से आप रिकवर करेंगे। लॉस अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। बिजनेस एंड प्रोफेशन के जो लॉसेस है इनकम आप सैलरी से आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये जो किए जा सकते हैं वो ऊपर है, जो नहीं किए जा सकते वो यहाँ पर 2 पॉइंट है। Where the SSE incur any loss under the head of income from house property, it can be set off against the SSE and any other income under the head other income during the previous year, and then balances loss shall also be carried forward and set off of subsequent subject of the limit of 8 assessment years। Section 71 subsection 3A interhead adjustment of loss under the head of house property। Adjustment of loss under the head of house property which against income under the head of other head in the same years cannot be exceeding of rupees 2 lakh। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा की जो आपकी एडजस्टमेंट है वो यहाँ नहीं हो सकती है हाउस प्रॉपर्टी की। अदर रिमेनिंग लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, बाकी लॉसेस को भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है इन द फ्यूचर एज पर द 71B। There is no restriction of rupees 2 lakh in the section 71B and inserted by the Act of 2018 and 19। Loss incurred by the SSE from a source, income from which is exempted cannot be set off against the income from taxable। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं जो आपकी यहाँ पर हो सकती हैं। Then fourth carry forward of losses क्या होते हैं? So basically many times it may happens that after making inter-head and inter-head adjustment still the losses remain unadjusted। आप देखते हैं तो इंटर और इंटर-हेड दोनों तरह के एडजस्टमेंट करने के बाद भी कुछ चीजें जो है हमारी रह जाती हैं या रिमेनिंग हो जाती हैं। सच अनएडजस्टेड लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह की चीजों को हम क्या करते हैं अगले सब्सिक्वेंट ईयर में जो है एडजस्टमेंट के लिए छोड़ देते हैं। तो सेपरेट प्रोविजन हैव बीन फॉर्म्ड अंडर द इनकम टैक्स लॉ ऑफ कैरी फॉरवर्ड of losses under different heads of income। So losses can be set off against the income of the following years provided that they have been suffered by SSE in determining in the pursuance of the return of field to the SSE। The further carry forward losses and unobserved depreciation is permissible if the return of income for the year in which loss is incurred is filled in the time। The late filing of return should not be impact of the status of carry forward of losses। late filing आपका इसमें नहीं लेता है, लेकिन अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो वहां पर आपकी ये सब चीजें आपको मिल जाती है। Following losses could be carry forward। लॉस इन नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस और प्रोफेशन आपका कैरी फॉरवर्ड किया सकता है। लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस आपका कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लॉस इन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ये ट्रांसफर हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। लॉस ऑफ कैरी एक्टिविटी ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, अगर आप उन्हीं में लगे हुए हैं तो ये आपका ट्रांसफर हो सकता है। लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। However, loss suffered under the following heads are not allowed to carry forward। कुछ हेड हैं जैसे कि लॉस अंडर द हेड ऑफ सैलरी, सैलरी में अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्सेप्टिंग लॉस सफरिंग फ्रॉम द एक्टिविटी ओइंग द मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज, इनको आप नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की हम बात करें तो लॉसेस ऑफ
सर्टेन असेसमेंट आप करें तो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज इन केस ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म आप चेंज करते हैं सेक्शन 78 के अकॉर्डिंग उनको फिर कैरी फॉरवर्ड और लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस का सक्सेशन यानी आगे फिर उसको ब्रांचेस वगैरह बना रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज ऑफ कंपनीज इन केस ऑफ सर्टेन कंपनीज, सेक्शन 79 में ये जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशंस दी गई उनके कंडीशंस के हिसाब से हम आगे इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देन 6 इज सबमिशन ऑफ रिटर्न्स ऑफ लॉसेस फॉर लॉसेस। सेक्शन 80 में ही जाता है। एन एसएससी इज नॉट एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड अ लॉस अनलेस ही हैज अ फाइल रिटर्न। जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे किसी भी लॉस का टू द डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ एंड प्रेस्क्राइब फॉर्म, and it is obligatory on the part of SSC to file such return. Otherwise, he will be deprived of the benefits of carry forward losses. In fact, only that the amount of losses is allowed to be carry forwarded, which has been computed by SSC officer, not by the SSC. SSC officer के द्वारा जो भी losses हैं उनको आप ले सकते हैं, ना कि आपके द्वारा। Section 80 of the Act provide that a loss which has not been determined in pursuance of the return, ठीक है, फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 शैल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। जो इस सेक्शन में आएंगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते हैं। एंड सेट ऑफ अंडर सेक्शन 72 सबसेक्शन 173 सेक्शन 2 74 सेक्शन 174 सबसेक्शन 3 74A previously. So it does not include a section 73A which provide that any loss computed in respect of any specific business referred to in the section 35 AD. And section 80 of the act has been amended by the Finance Act 2016 to provide that loss determined under section 73A shall not be allowed to be carried forward. Section 73A को हम allowed नहीं करेंगे यहाँ पर according to this, and set up unless it is determined in pursuance of return file under section 139(3) में अगर आप फाइल कर भी रहे हैं तब भी। These amendment effective retrospectively from 1st April 2016 and accordingly applying in relation to assessment in 16-17 and subsequent years. आज तक इनको लागू माना जाएगा। So thank you very much. So this is all about the set of losses, the carry forward losses, and all these things I discussed with you. And there are different provisions and other. If you have any problems, then call me. Thank you very much.